عدم اعتماد سے پہلے مستعفی ہو جائیں۔ حکومت جتنی دباؤ میں آج ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے تو اسلام آباد پہنچ کر تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ ان کی جدوجہد اپنی پارٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے مشیر اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، حکومت کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجیں گے۔ اس وقت جہاں سارے پارٹیز مل کے صرف اس چیز کا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کروا دیں، تاکہ جب صاف و شفاف الیکشنز ہو تو ایک عوامی حکومت بنائے جو وہ مسائل کا حل کر سکے۔ حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے، اتنا پریشر میں ہے کہ شاید ماضی میں اتنا پریشر نہیں رہا ہے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہ عدم اعتماد ہے۔ ہم نے پہلے بھی ان کو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں شکست دلوایا تھا اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے بھی ان کو شکست دلوائیں گے۔ ہم بالکل ڈیڈ لائن دے رہے ہیں خان صاحب کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے۔ اگر اس پہ عوام پہ بھروسہ ہے تو اس کو خود، جیسے اس نے پہلے بہت دفعہ دھمکی دیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا، تو اگر اس میں بھروسہ ہے عوام میں تو اس کو اسمبلی توڑنا چاہیے، عوام میں آنا چاہیے۔ اور میں گھر نہیں بیٹھوں گا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ہم لگے رہیں گے، اس کے پیچھے لگے رہیں گے۔ اس وقت میں اپنے ذات کے لیے نہیں نکلا ہوں، نہ میرا اپنا جماعت کے لیے نکلا ہوں۔ ہم قوم کے مفاد کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانے کے لیے نکلے ہیں۔ ندیم افضل چند دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ لاہور میں اپنی رہائش گاہ پر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کو غلطی قرار دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے بھی بھٹو والے تھے اور آئندہ بھی بھٹو والے ہی رہیں گے۔ 2-2.5 سال پہلے میں نے جب سیاست شروع کی تھی، آج سے 20-22 سال پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع کی تھی۔ میں اکثر میڈیا پہ بھی کہتا ہوں کہ جو میرا ایک غلط فیصلہ تھا، جو میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں۔ جب خان صاحب آئے تھے میرے گھر تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آج بھی بھٹو والا ہوں، میں کل بھی بھٹو والا ہوں۔ میں پی ٹی آئی میں بھی گیا تھا تو میں پرانے ورکروں کی بات کرتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کی فیملیز تھے، جو پی ٹی آئی میں 18 سال سے گئے ہوئے تھے، یہ دستہ چلے گا اور اللہ کے حکم سے گھر گھر سے بھٹو نکلے گا اور جیے بھٹو ضرور ہوگا۔ ادھر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کا پارٹی قیادت کو نواز شریف سے محتاط رہنے کا مشورہ۔ ندیم افضل چند کی رہائش گاہ آمد پر صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، لوگوں کا رویہ دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا عمران خان گھر جا رہے ہیں یا پھر نہیں۔ ملک اور ادارے کے لیے وزیر اعظم ناگزیر ہوتا ہے۔ اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوگا تو کوئی اور وزیر اعظم ہوگا۔ جذبے سے فوٹو زیادہ لگائی اور نواز شریف پہ اعتماد کرنا چاہیے زرداری صاحب کو؟ نواز شریف پہ احتیاط برتنی چاہیے، میری رائے ابھی بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ جاتے نظر آ رہے ہیں؟ کیا احتیاط ہو تھوڑا سا اگر آپ آپ کو وزیر اعظم جاتے نظر آ رہے ہیں عمران خان؟ یہ آپ جذبات لوگوں کا دیکھیں گے اور آپ کو آگے اندازہ خود ہو جائے گا۔ اعتزاز صاحب جس طرح آپ نواز شریف پہ کھل کے بولتے ہیں، عمران خان کے خلاف نہیں بولتے، کیا اب بھی وہ ناگزیر ہے اداروں کے لیے؟ چند سال کے بعد کون کون آ رہا ہے؟ کیا عمران خان ناگزیر ہے ابھی بھی ملک اور ادارے کے لیے؟ ملک اور ادارے کے لیے کوئی وزیر اعظم ناگزیر ہوتا ہے اور وہ عمران خان نہیں ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا۔ تو یہ کیوں، وجہ کیا ہے جا چکے ہیں؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا جذبہ جوش دیکھ رہے ہیں، ملک بڑا انگورنبل ہوا ہے۔ اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی؟ لوگوں کی وجہ اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے عوام کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے تحریک عدم اعتماد کی تاریخ دے دی۔ کہا کہ 8 یا 9 مارچ کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں جو کہ کامیاب ہوگی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، کبھی میدان میں آئے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ امپائر نیوٹرل ہو۔
अहम खबर है, तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है। अरकान मुल्क में मौजूद रहें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी हैं। शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान पार्लियामान को बैरून मुल्क सफ़र पर जाने से रोक दिया है। कहा है स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर इन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पार्टी अरकान वफूद का हिस्सा ना बने। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ है। जी शाकिर, बताइएगा क्या मजीद तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, कायदे खिलाफ और मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने वाली है, अरकान मुल्क में ही रहे। शहबाज शरीफ ने पार्टी के तमाम अरकान को पार्लियामान को जो है वो बैरून मुल्क सफर करने से भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मुल्क में ही रहे। और स्पीकर कौमी असम्बली का उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर उन्हें बाहर भिजवाने की साजिश की जा रही है। शहबाज शरीफ ने पार्टी अरकान को स्पीकर के बैरून मुल्क दौरों में हिस्सा लेने से भी रोक दिया है और तमाम पार्टी अरकान की जो मौजूदगी इस्लामाबाद में यकीनी बनाने की हिदायत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर आपका। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन काट का घोड़ा निकले। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को वापस चली जाएगी। उनके तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस के बाद अहम दौरे करेंगे। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के बारे में आपको बताएं, लाहौर के नासिर बाग में पीपल्स पार्टी के सियासी शो का स्टेज सज चुका है। कारकुनों की जलसा का आमद भी जारी है। जियालों को जोशो खरोश जो है अपने अरूज पर पहुंच चुका है। लाहौर में जलसे के बाद लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से होता हुआ वजीराबाद जाएगा। कारकुनों ने शहर शहर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करनी है। इंतजामिया ने सिक्योरिटी प्लान भी फाइनल कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च ने लाहौर में रंग जमा लिया। कारकुनान पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स हुआ। तगड़े नाश्ते के बाद पार्टी परचम के रंगों से सजी टोपियां, मफलर और शॉल्स पहने जियाली जलसे में शिरकत के लिए नासिर बाग पहुंचना शुरू हो गए हैं। जियाले हुकूमत को घर भेजने के लिए पुरज़्म हैं। कहते हैं कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत से छुटकारा है। इस नायल हुकूमत, इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेज के फिर हम घर जाएंगे। फेरोजवाला और सफदराबाद में भी जियाले अपने कायद के इस्तिकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। लाहौर पे जलसे के बाद लॉन्ग मार्च की अगली मंजिल गुजरांवाला होगी। जीटी रोड पीपल्स पार्टी के परचमों से सजा दी गई। शहर के 5 अहम मकामात पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब की तैयारियां मुकम्मल। 3,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार और ऑफिसर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लॉन्ग मार्च का अगला पड़ाव वजीराबाद होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तिकबाल के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। लॉन्ग मार्च पर 20 बंद फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी। जाले के लिए 25 एकड़ पर मुहित खैमा बस्ती भी तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नासिर बाग में जलसे के लिए जयालों का जोश उरूज पर है। जलसा गाह पे मुल्क भर के कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर और सरदार मीर बाज केथरा ने कहा है कि आज बिलावल की आमद पर लाहौरियों का वही जज्बा दिखाई दिया जो 70 और 80 की दिहाई में जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के लिए था। इसी पर मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, इब्राहिम लकी से हम जानेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नासिर बाग के बाहर जलसे के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने काफिले के हमरा यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि नासिर बाग के बाहर जो है जेलों ने तमाम इंतजाम अपने कायद के इस्तकबाल के लिए किए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मलिक उस्मान सलीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त ये पंजाब पूरा मान चुका है और जान चुका है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर रेलिवेंट नहीं किया जा सकता, अगर मुल्क बचाना है, अगर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाना है, अगर अवामी ज़िंदगी को बेहतर करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में लाना पड़ेगा। और ये सोच जो है इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है। चीचा वतनी से लेकर अटक से लेकर मुल्तान तक ये बात ये पेनिट्रेट कर चुकी है अवाम के अंदर कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
इक़्तिदार में लेके आना है। उनका ये कहना था कि होमवर्क जो है नंबर गेम के हवाले से वो तैयार है, लेकिन हमने पब्लिक को मोबिलाइज किया है और पब्लिक का भी एक प्रेशर ऐसा एक साथ मिलेगा जिससे हुकूमत का दरन तख्ता होगा। जी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के मुसलसल इक़्तिदार से थक गए हैं, वो मुतबादल चाहते हैं। उन्होंने कहा नदीम अफजल चंद के जाने पर अफसोस हुआ, मौका मिलता तो उनसे कहते हैं वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पीटीआई को कराची में भी शर्मिंदगी का सामना होगा। तहरीक इंसाफ ने एमक्यूएम से रेंट अ क्राउड का मुआहिदा किया है। उन्होंने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन बंदे भेजने का पता नहीं। जोकर मार्च को कराची में आज दफन कर दिया जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में लोगों ने लॉन्ग मार्च का शानदार इस्तेकबाल किया। पंजाब हुकूमत ने रोड्स को ब्लॉक कर दिया है। चीचा वतनी में लॉन्ग मार्च में शामिल गाड़ियों पर पथराव भी हुआ। विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं तारीख पर तारीख देने वालों को शिकस्त हुई है। 3.5 साल में हमने 12 ये सर्कस देखा। अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गई। वज़ीर आज़म ने इनको पार्लिमान और बाहर शिकस्त दी। मुराद सईद ने कहा अपोजिशन कह रही है दुनिया में महंगाई हुई है तो यहाँ क्यों कम कर दी, पाकिस्तानी कौम का पैसा चुरा कर इस्तेहसाल किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम दिया है और कहा है कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि वो अपने मुशीरान से मुहतात रहें। वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया में फासले पैदा कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की तरफ से अपने मेंबर्स को मखसूस चैनल्स में ना जाने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि आज़ादी इजहार राय जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। आपको बताएं कि पेशावर कूचा रिसालदार में धमाके की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में हमलावर को 2 सहूलतकारों के साथ गुवाहाटी गेट से कूचा रिसालदार जाते हुए देखा जा सकता है। सहूलतकार एक जगह हमलावर को रोककर हिदायत भी देते हैं और फिर हमलावर को छोड़कर वापस गुवाहाटी गेट की जानिब चल पड़ते हैं। उधर धमाके की मजीद 10 जख्मियों को इलाज मुआवजे के बाद लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया है। धमाके के 27 जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। महकमा प्राइमरी हेल्थ की बनाई गई इंक्वायरी टीम ने सत्तू कतला ड्रेन में फेंकी गई कोरोना वैक्सीन की भरी हुई वॉयल्स उठा ली हैं। न्यूज़ ने गंदे नाले से वैक्सीन उठाने की फुटेज हासिल कर ली है। लाहौर से मियां नवीद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में हजारों कोरोना वैक्सीन वायल्स जाया। न्यूज़ की खबर पर महकमा प्राइमरी हेल्थ का एक्शन। वायल्स को इंक्वायरी टीम की हदायत पर सत्तू कतला ड्रेन से उठा लिया गया जो वैक्सीन से भरी हुई थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह कोरोना वैक्सीन को इकट्ठा किया जा रहा है। वैक्सीन वायल्स में सैनोवैक, पाकवैक, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनेका और मोडर्ना शामिल। डीजी हेल्थ पंजाब की जानब से इंक्वायरी के लिए बनाई गई टीम में एडिशनल डायरेक्टर ईपीआई डॉक्टर परवेज इकबाल, एडिशनल डायरेक्टर पीएनडी डॉक्टर याया भट्ट और एमओ ईपीआई डॉक्टर मुदस्सर सईद शामिल हैं, जो मामले की छानबीन करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। न्यूज़ ने कल इस खबर को नशर किया था कि वोटर लिस्टों से कोरोना वैक्सीन का जाली इंदराज किया जाता रहा, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन का स्टॉक बच गया। बच जाने वाली वैक्सीन को मुलाजमीन ने जाया कर दिया। मियां नवीद, न्यूज़, लाहौर। नाकिस खाना खिलाने वाली मोदी सरकार से तंग भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एहलकार ने साथियों पर फायरिंग कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर अमृतसर के बीएसएफ मेस में एक एहलकार ने फायरिंग करके अपने 4 साथियों को हलाक और एक को जख्मी कर दिया। फायरिंग करने वाला कांस्टेबल सितवा खुद भी फायरिंग में मारा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कांस्टेबल अपने ड्यूटी औकात और ऑफिसर्स के रवैये से खुश नहीं था। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए।